Good morning, student. So today's topic is vibrational spectrum. So vibrational spectrum, this is also called infrared spectroscopy, as the absorption spectra in the infrared region result from the transitions between the vibrational energy levels. Now the types of molecules which exhibit vibrational spectrum. Type of molecules which exhibit vibrational spectrum. So vibrational motion of the molecule, this should be accompanied by a change in the dipole moment of the molecule. So molecule need not possess a permanent dipole moment, लेकिन उसका dipole moment के अंदर change आना चाहिए. For example, like homonuclear diatomic molecules have zero dipole moment and there is no change in dipole moment when the molecule undergoes vibrations. But like example, hydrogen, oxygen, N2, they do not give vibrational spectra, and that's why these molecules are also called infrared inactive. But there are other diatomic molecules like HCl, HF, CO, which have different atoms. So these and other polyatomic molecules like carbon dioxide, water, so they exhibit the change in dipole moment in some of their vibrational modes, and therefore these are infrared and hence they give vibrational spectra. So the type of molecules में सबसे important है, these molecules need not possess a permanent dipole moment, but इनका फॉर एग्जांपल HCl है या HF है, CO है, ये ऐसे से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, या आप CO2 कह सकते हैं. CO2 का परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, बट इसका लेकिन इसकी कुछ ऐसे वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं, इसलिए ये इंफ्रारेड एक्टिव है, ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देगा. हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम में देखा था कि CO2 का वही मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रम देते हैं जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है. एग्जांपल CO2 का परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देता था. बट इन द केस ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम इसके कुछ ऐसे मोड्स हैं जो, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका डिफरेंस है काफ़ी, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम शो करेंगे, ऑल्दो दे डोंट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स. और जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो मॉलिक्यूल्स तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देंगे ही. नाउ द सेकंड इज एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सो हियर this is potential energy on y-axis. This is a parabola graph and this is zero. Sorry, this is the origin minus x and this side plus x. So simple harmonic oscillator is a particle which oscillates about an equilibrium position. So we take this as an equilibrium position as origin. तो इतना जो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा दैट इज टेकन एज x, और अगर इफ दिस साइड दिस इज माइनस x, एंड दिस इज एक्टेड अपॉन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस इज गिवन बाय द हुक्स लॉ, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. So here K is the proportionality constant and this is also called force constant. So this mind it, this is very important. K, this is force constant, and here minus sign is used because force always this acts in the opposite direction to the direction of displacement. अगर इस direction में है तो the force will be in opposite direction because this force is restoring force, and this is the Hooke's law. Now the potential energy of this oscillator over the distance x, so this will give half kx square. So this equation shows that oscillator can have any positive value of potential energy. और ये हमारी इक्वेशन जो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला है. When the potential energy is plotted against displacement from the equilibrium position, this parabola is obtained. Now the vibrational frequency.
of the SHO of the mass m is given by 1 upon 2 pi under root k upon m. If the molecule is diatomic, we can write 1 upon 2 pi under root k upon mu. Here mu is the reduced mass. This is for the diatomic molecules, and you know reduced mass mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2. This is the reduced mass. Now using this equation for potential energy, the solution of Schrodinger wave equation for a SHO gives the quantized vibrational energy levels. So ये हमारी एनर्जी लेवल देगा म्यू प्लस हाफ एच म्यू. अब इसमें बहुत डिफरेंस है. दिस इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. It looks like they are same, but they are not same. This is the vibrational quantum number. And this is the vibrational frequency. तो अगर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर अगर ज़ीरो है तो हमारा ई म्यू क्या हो जाएगा, हाफ एच म्यू. तो हाफ एच म्यू का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल कैन नेवर हैव ज़ीरो वाइब्रेशनल एनर्जी. कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी तो होगी ही, और इस वाइब्रेशनल एनर्जी को हम ज़ीरो पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं. ज़ीरो पॉइंट एनर्जी मतलब अगर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर अगर ज़ीरो भी है, ज़ीरो लेवल पर है, तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर होगी. डैट इज़ इक्वल टू हाफ एच म्यू. To express this energy in centimeter inverse, we can divide this equation by hc. So h cancel, mu upon c we can write this as mu omega e. So mu upon c we can also write it as omega e centimeter inverse. This is in centimeter inverse, and this mu plus half h mu was in joules. Now the selection rules. Selection rules for vibrational transition is delta mu is equal to plus minus 1. So here plus 1 refers to absorption and minus 1 refers to emissions. So during a vibrational transition, vibrational quantum number will only change by 1. So this is the selection rule for this. There are plus 2, plus 3 also, but those are forbidden. Now the another thing is vibrational spectrum of diatomic vibrator. So we know the selection rule is delta mu is equal to plus minus 1. So if अगर ट्रांजिशन हमारी एक मान लीजिए म्यू प्लस वन से म्यू में एक इस लेवल पे होती है, तो इसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम देखते हैं क्या आएगा. सो ई म्यू प्लस 1 माइनस ई म्यू. अब हमें पता था कि ई क्या है, म्यू प्लस हाफ म्यू. तो अब हमारा म्यू प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा म्यू प्लस 1 प्लस हाफ एच म्यू, और इस केस में ओनली म्यू. सो जब इसे सॉल्व करेंगे एंड इफ वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, देन वी विल राइट लाइक दिस. यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा ई. इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स. दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स. So vibrational energy levels, this means that are equally spaced and the spacing is equal to omega e. In rotational spectrum we see that the spacing was 2b centimeter inverse, and in vibrational spectrum it is omega e. So this means that transition between any two neighboring energy levels will appear at the same wave number,
and the vibrational spectrum of a molecule will contain only one absorption line appearing at the wave number equilibrium which was equal to the equilibrium vibrational frequency of the diatomic molecules. फिर हम देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट में होते हैं और जो पॉपुलेशन हायर लेवल्स में काफ़ी कम होती है, तो सबसे ज़्यादा जो इंटेंस ट्रांजिशन होगी वो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में होगी. जीरो से 1 में ही जाएगा क्योंकि डेल्टा म्यू प्लस माइनस 1 ही है ट्रांजिशन, से म्यू 0 से 1 में जाएगा. इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो 0 से 1 में होती है, क्योंकि 0 में ग्राउंड स्टेट बहुत ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं ग्राउंड स्टेट में, और उस वजह से इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. उसके बाद है फोर्स कैलकुलेशन. अब इसका यूज़ है फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम वी कैन डिटरमाइन दी फोर्स कांस्टेंट जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया. फोर्स कांस्टेंट जो कि हमने हुक्स लॉ में किया था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था जिसमें F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्प्लेसमेंट हियर इज x. और फोर्स कांस्टेंट एंड द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज रिलेटेड एज ओमेगा ई इज इक्वल टू 1.2 पाई के अपॉन म्यू. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं के को इस तरफ लेकर आते हैं तो k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओमेगा ई का स्क्वायर म्यू. म्यू यहाँ पे रिड्यूस मास है, तो ओमेगा ई की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन से, उसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम से. और अगर हमें म्यू पता है यानी कि m1 m2 रिड्यूस मास हमें पता है, तो हम k की वैल्यू फोर्स कांस्टेंट हम इस तरह से निकाल सकते हैं. अब फोर्स कांस्टेंट से हमें क्या पता लगता है, जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होता है हमारा बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होता है, यानी कि बॉन्ड डिस्टेंस डिक्रीज होता है. बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. तो इससे हमारी बॉन्ड एनर्जी का पता लगता है. फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr एंड HI. फोर्स कांस्टेंट सबसे ज़्यादा HF का है, फिर HCl का है, HBr का है और HI का है. तो फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है, इससे पता लगता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है. तो सेकंड फोर्स कांस्टेंट से मल्टीप्लिसिटी का भी पता लगता है. फॉर एग्जांपल जो C ट्रिपल बॉन्ड होगी उसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. फिर लास्ट टॉपिक है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी of different functional groups. Vibrational frequency of different functional groups. एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं. आपने 3n-6 और 3n-5 पढ़ा लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए. और इसमें दो तरह की वाइब्रेशन होगी, एक तो स्केलेटल वाइब्रेशन होगी और एक होगी ग्रुप वाइब्रेशन. ग्रुप वाइब्रेशन जो होगी वो किसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगी. एक तो स्केलेटल होगी और एक ग्रुप वाइब्रेशन होगी. स्केलेटल वाइब्रेशंस की जो रेंज होगी वो होगी 1500 to 700 सेंटीमीटर इनवर्स, और ग्रुप वाइब्रेशंस की इससे ऊपर भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है. तो इसको बेसिकली फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, जो कि करेक्टरिस्टिक होता है मॉलिक्यूल का. फॉर एग्जाम्पल OH है, OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसकी 3600 है एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी. ट्रिपल बॉन्ड CH की 3300 है, डबल बॉन्ड की थोड़ी सी कम है. तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं. अब ये कैसे पता लगेगा, अभी आपने देखा कि 1 ओमेगा का क्या था, 1.2 पाई C√K/μ सेंटीमीटर इनवर्स. तो जिसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उसकी ओमेगा भी ज़्यादा होगी. अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि फोर्स कांस्टेंट ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड.
तो उस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने देखा कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी डबल बॉन्ड। सिमिलरली जो सिंगल की है वो है नियर अबाउट 2970, दिस इज़ फॉर एसिमेट्रिक स्ट्रेच। इसी तरह से CH और CF की देखें, जैसे जैसे रेड्यूस मास इंक्रीज करेगा हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं K बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर रेड्यूस मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो CF की जो है वो 1050 है और इसी तरह से CL की 725 है। तो जैसे जैसे हमारा रिड्यूस मास बढ़ेगा हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक।